Okay, good morning students. So today we are going to start the new chapter, your metals and non-metals, as we have completed the exercise of chapter 2. Hope you are okay with chapter 2 now and you don't have any doubts regarding it. But if you have any of the doubts, any of the thing you want to ask, I am going to schedule a live class, okay, maybe tomorrow, okay, and we will discuss your doubts, all the doubts of chapter 2, or even if there is a doubt of chapter 1, we will discuss it in the class. And please make sure you all come to the live class tomorrow. I will start the live class around 8, okay. So I will send the details in the group itself for the live class. Okay, we'll start with metals and non-metals. So what do you know about metals and non-metals? In class 9 of chapter 2 we studied about what are elements. उसमें मिक्सचर्स का चैप्टर था वो, हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, elements, and we know there are 114 elements that are known to be present in earth. Different types of elements. Some of them are metals, some of them are metals, and some of them are non-metals. Based on their physical properties, based on their physical and chemical properties, based on the physical and chemical properties, we have classified them in metals and non-metals. There is third category also, which are known as metalloids, और आप इसको और क्या कहते हो, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है ना, इसको इस नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है ना, इसको सेमी कंडक्टर्स भी बुलाते हैं. तो metals, non-metals and metalloids are three categories in which all the 114 elements are being classified according to some physical and chemical differences in their behavior. We have classified them as metal and non-metal. So what are those physical properties or chemical properties? What are the difference? We are going to study in this chapter. ठीक है ना? So we'll start with metals, okay? Then afterwards we will move ahead. ठीक है ना? We'll start with metals. To observe it, we can do an activity given on the first page of the book. We can see activity 3.1. Okay. Here we can see an activity 3.1. इसमें आपको करना क्या है? You have to take the samples of iron, copper, aluminum, magnesium. All these are metals. You know, we have already classified them. For example, iron, aluminum, copper, and magnesium. What we'll do is we will take some amount of iron, copper, some samples of iron, aluminum, copper and magnesium, ठीक है ना, और उसकी अपीयरेंस देखनी है, कैसी अपीयरेंस है, ठीक है ना. विल सी द अपीयरेंस कि वो दिखने में कैसे है. दैट्स हाउ वी मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना. और अगर हम सरफेस को साफ़ करें, उनको रब करके किसी सैंड पेपर से, और उसके बाद उसकी अपीयरेंस देखें तो क्या फ़र्क आएगा. तो व्हाट विल सी इज़, जब हमने सिंपल सैंपल्स लिए थे, हो सकता है उसमें कोई रस्ट, डर्ट, ये सब चीज़ लगी हो, तो इनकी सरफेस जो है बड़ी डल सी और बेकार सी दिखेगी. बट आफ्टर यू क्लीन इट यूजिंग अ सैंड पेपर, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, इनके जो एक्चुअल जो जैसे होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन जो होता है वो चमकने लगता है अंदर से, ठीक है ना. एल्युमिनियम का भी सेम केस ऐसे ही, कॉपर का भी, मैग्नीशियम का भी, ये चारों अंदर से चमकने लगेंगे. अगर आप इसको किसी चीज़ से हिट करोगे तो वो क्या होगा, आवाज़ आएगी, तो दैट इज़ उनके सोनोरस टाइप होंगे, ठीक है ना. और क्या होगा, अगर आप इनको क्या कहते हैं हैमर करोगे और चाहोगे कि ये पतले पतले शीट्स में आ जाए, तो ये पतले पतले शीट्स में भी आ जाएंगे, ठीक है ना. उसके अलावा यू कैन ये दे आर डक्टाइल ऑल्सो इन नेचर. तो डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स. तो ये सब प्रॉपर्टीज जो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ी थी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है ना, सनरस, ठीक है ना, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, इनकी लस्ट्रस जो होती है, ऊपर की लेयर जो होती है लस्ट्रस, दैट मीन्स दे शाइन, ठीक है ना. ये सब प्रॉपर्टीज़, और इनकी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना. इनका हार्ड होना, दे आर हार्ड इन नेचर, ठीक है ना.
तो ये सारी जो जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखेंगे, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको काटने की कोशिश करेंगे नाइफ से, किसी नाइफ से इनको काटने की कोशिश करेंगे, वी कैन नॉट कट देम ईजिली, ठीक है ना, ये आराम से काटे नहीं जाते, ठीक है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना। अगर हम सोडियम को देखेंगे, सोडियम को हम नाइफ से काट सकते हैं, वो सॉफ्ट होता है नेचर में, ठीक है ना। पोटेशियम भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो देर आर एक्सेप्शंस, हमने एक्सेप्शंस भी देखे थे क्लास 9th में, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड नेचर के, वो सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। उनका जो दिखने का अपीयरेंस होती है वो सॉलिड होती है, मतलब वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, लिक्विड और गैस नहीं होते। लेकिन इसका बहुत अच्छा एक एक्सेप्शंस क्या है कि जो मरकरी होती है वो कैसी होती है, वो लिक्विड होती है नेचर की, रूम टेम्परेचर पे। ऐसे ही बेरियम भी कैसा होता है, बेरियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, मतलब इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, बल्कि और जबकि हम ये देखें इन सबका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है ना, सबका बहुत ईजिली मेल्ट नहीं होते। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को देख के हम ये बता सकते हैं कि जो ये हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, इनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल अपीयरेंस में वो कैसी दिख रही है, वो दिखने ही कैसी है, ठीक है ना। जैसे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्शन नेचर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं, वो जो नेचर है इनका, वो ये बताता है कि दे आर ईजी टू दे कैन ईजिली बी यूज एज द वायर्स, ठीक है ना, उनको वायर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। वहीं नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, वी कैन नॉट यूज देम, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। फॉर देयर इज़ अ नॉन मेटल नेम्ड कार्बन, यू सी दैट एंड यू ऑल्सो सी दैट जो सेल के रॉड्स होते हैं, जो सेल की रॉड होती है वो भी कार्बन की बनी होती है। तो कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल इट इज़ कंडक्टिव इन नेचर, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग मेटल दीज आर लिक्विड इन नेचर। तो ये जो अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो एक्चुअल बिहेवियर है सबका, उससे थोड़ा अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, दे आर एक्सेप्शंस, ठीक है ना, दे आर नोन एज एक्सेप्शंस। ठीक है, दे आर एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी दी हुई हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, ठीक है ना, और 3.6, ये सारी एक्टिविटी हम देखेंगे और एक एक एक्टिविटी को देखकर उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना शुरू करेंगे। तो पहली एक्टिविटी में जब हमने सैंड पेपर लगाया तो हमें क्या पता चला, ये कैसे था, ये लस्चरस था, कैसे था, लस्चरस था, ठीक है ना। हमें पता चला कि ये कैसे होते हैं, लस्चरस होते हैं नेचर में, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज, जब हमने इनको काटने की कोशिश करी, ठीक है ना, लस्टर्स का मतलब क्या होता है, दे हैव शाइनिंग सरफेस, ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी नंबर टू हमारी क्या कहती है, हम एक्टिविटी 2 देखेंगे। एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया, यही सारे हमने एलिमेंट्स लिए और उनको कट करने की कोशिश करी नाइफ से। तो व्हाट वी फाउंड इज, वी विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड, ठीक है ना, metals are generally hard, ठीक है ना, मेटल्स हार्ड होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कि उनकी हार्डनेस अच्छी होती है, और हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल, अलग अलग मेटल की अलग अलग हार्डनेस हो सकती है, अलग हार्डनेस की वजह से दे हैव डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि वो कितनी ज़्यादा वेट को विदस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये एलिमेंट हो गए जो कि लिक्विड नेचर में है, और जो कि और कुछ मेटल्स हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ये मेटल्स जो होते हैं ये कैसे हार्ड नहीं होते, ये इजीली नाइफ से हम कट कर सकते हैं इनको। दैट्स वाई दीज मेटल्स, ठीक है ना, दीज मेटल्स आर एक्सेप्शंस फॉर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम एक्टिविटी 3.3 देखेंगे, फिर से हमने क्या किया, यही चारों को लिया, ठीक है ना, और ठीक है ना, और इसको ऐसे मार के देखा। जब इसको मारा तो हमने क्या मतलब इसको हमने हैमर से पीटना शुरू करा। जब हमने इसको हैमर से मारा तो पहली जैसे मैंने इसको हैमर से मारा तो हमने को क्या बोला, आवाज़ आई। जो आवाज़ आ रही थी, जो वो आवाज़ करते हैं, उस आवाज़ की वजह से इन पर क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है,
सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको बेल्स में यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ देम टू मेकिंग बेल्स, ठीक है ना, ठीक है ना, वो सोनरस होते नहीं चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। अगर इनको भी हम सॉलिड बनाएं तो ये भी सोनरस होंगे, ठीक है ना। तो सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है ना, दे कैन बी यूज्ड एज बेल, ठीक है ना, जब भी हम उनको मारते हैं तो बेल की आवाज़ आती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जब हम उनको ऐसे मैं अगर हैमर से मार रहा हूँ तो मार मार के मैं इसको पतली थिन शीट्स में बना सकता हूँ, थिन शीट्स कैन बी मेड बाय हिटिंग दैम विद अ हैमर। तो थिन शीट्स बनाने का जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है बेटा, दैट मीन्स दे आर मेलिएबल। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम क्या होता है, मेलिएबल। तो लिखेंगे दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन मेक शीट्स ऑफ मेटल, ठीक है ना। अच्छे एग्जांपल्स क्या है, गोल्ड और सिल्वर की शीट्स देखने को मिलती हैं हमें, आयरन की शीट्स देखने को मिलती है, जो भी आपके घर झोपड़पट्टी के ऊपर जो भी टीन की रखी होती है वो आयरन की, एल्युमिनियम की, सबकी बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये शीट्स में बन सकते हैं इसलिए हम इनसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दे कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ये इनकी प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, ठीक है ना, दे आर मेलिएबल। फिफ्थ वन इज हमें कुछ मेटल्स के नाम सोचने हैं जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, और एक एक्टिविटी है फिगर 3.1 उसको देखेंगे कि मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही बहुत बढ़िया कंडक्टर्स होते हैं। इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मेटल रॉड ले लेते हैं, एक मेटल रॉड ऐसे ले रखी है, उसको स्टैंड में लगा रखा है और नीचे से इधर बर्नर लगा रखा है। तो बर्नर जो है वो सिर्फ इस एरिया को गर्म कर रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर टच करोगे तो भी आपको गर्म फील होगा, यहाँ पे टच करोगे तो भी आपको गर्म फील होगा। बहुत अच्छे एग्जांपल आपके जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं आपकी रसोई में, वो सब कैसे मेटल के बने होते हैं। तो अगर आपके हैंडल के ऊपर कोई ऐसा प्लास्टिक या इंसुलेटर नहीं लगा हुआ है, यानी कि कोई नॉन मेटल ऐसा नहीं लगा हुआ है जो कि उसके ट्रांसफ़र ऑफ मतलब कंडक्शन ऑफ हीट को रोक सके, तब तक आपको वो गर्म लगता है। दैट्स वाई जो हैंडल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो नॉन मेटल के बने होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई वी कैन मेक यूटेंसिल्स यूजिंग द मेटल्स ओनली। तो आपने देखा होगा आपके पास एल्युमिनियम के कुकर्स होते हैं, ठीक है ना, आयरन की आपके पास कढ़ाइयाँ होती हैं, ठीक है ना, कुकर और कढ़ाइयाँ जो होती हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्शन, ठीक है ना। तो दिस वॉट टोल्ड इन एक्टिविटी 3.5, ठीक है ना। तो 3.5 एक्टिविटी शोज दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी देर इज़ अनदर एक्टिविटी नेम्ड मार्क 3.6, उसमें बताया गया है कि अगर आप क्लिप के बीच में, दो क्लिप्स लगा रखी हैं, एक बल्ब लगा रखा है बैटरी से कनेक्टेड है, अगर क्लिप के बीच में आप मेटल डालोगे, ठीक है ना, तो क्या, तो बल्ब जलेगा, और जैसे ही आप नॉन मेटल डाल दोगे कोई तो वो नहीं जलेगा, ठीक है ना। कोई रबड़ जैसा मटेरियल डालोगे तो वो नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो मेटल कैन प्रोड्यूस साउंड, उसका सोनोरस होता है, ठीक है ना, और वो गुड कंडक्टर और रेसिड्यूअल मेलिएबल होता है। फाइनल थिंग इज यू कैन मेक वायर्स आउट ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। आपने देखा होगा मेटल्स की होती हैं सारी वायर्स, जो भी क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो आपको वायर्स कैसे बनानी पड़ेगी, मेटल्स की बनानी पड़ेगी, और मेटल जो है वो वायर में बन जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट सेज दैट समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वायर बाय हैमरिंग और बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, ठीक है ना। कुछ ऐसा प्रेशर लगा के हम उसकी वायर्स बना सकते हैं, और वायर बना सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डक्टिलिटी। तो दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। इसमें आप हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी फॉर कंडक्टर्स, क्योंकि अगर उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो आपने नीचे से आग जलाई और आपका जो बर्तन है वो पिघल के नीचे गिर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और कॉपर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एज़ कम्पेयर टू अदर्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू मनी ऑल्सो, क्योंकि सबसे अच्छे कंडक्टर्स तो आपके गोल्ड और सिल्वर होते हैं,
गोल्ड सबसे अच्छा कंडक्टर है, लेकिन हम गोल्ड और सिल्वर को इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड सिल्वर यूज़ करेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो वी हैव टू कंसिडर द प्रॉफिट पार्ट ऑल्सो, दैट्स वाई वी डोंट यूज़ गोल्ड एंड सिल्वर, वी कंसिडर कॉपर इज़ द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसलिए आपके पास इस समय कॉपर वायर्स आती हैं। एल्यूमिनियम की भी वायर्स होती हैं लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और उसका कंडक्शन भी कम होता है, दैट्स वाई हम एल्यूमिनियम वायर्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की पढ़ ली है। अब क्या करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के ऊपर चलते हैं, वी विल स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। ये पार्ट तो आपका मेटल्स का था। अब देखते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स को देखते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, एकदम अपोजिट रहते हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ठीक है ना, उससे डिफरेंट रहते हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखने के लिए वी विल अगेन डू सम एक्टिविटी यूजिंग नॉन मेटल्स। पहले तो नॉन मेटल्स होते कौन से? नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि आपके जो भी नॉन डक्टाइल इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमने उन सब एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स नॉन डक्टाइल थे, जो कि एलिमेंट्स नॉन डक्टाइल थे, जो कि इंसुलेटर थे, ठीक है ना, जो भी आपके कैसे थे, नॉन सोनोरस थे, ठीक है ना। जब आपने उसको मारा तो बेल जैसी आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना। जो नॉन मेलिएबल हैं, ठीक है ना, जो भी नॉन मेलिएबल हैं, ठीक है ना, और जिनका जो स्टेट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉलिड तो कम होते हैं, लिक्विड और गैस ज़्यादा होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है ना। ठीक है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, ठीक है ना, जो कि बिटर नेचर में होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब उनको मारो तो वो चूर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ फॉर द एलिमेंट्स हु आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, अगर आप देखोगे जो क्लोरीन है आपके पास, जो भी गैस क्लोरीन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन आपकी जो गैस है, ठीक है ना, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये कैसे रहते हैं, गैस की स्टेट में रहते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर गैस होते हैं। देखो क्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गई, ये सब क्या है बेटा, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल्स, ठीक है ना। क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स के हैं। दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन सोनरस, नॉन फ्लेमेबल, नॉन मेलिएबल, ठीक है ना। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे हमने मेटल्स को देखा, नॉन मेटल्स को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये भी प्रीवियस क्लास में देखा था कि जितने भी इस टाइप के एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे नॉन मेटल्स में आते हैं, ठीक है ना। इसमें और जोड़ सकते हो आप हाइड्रोजन, ठीक है ना, हीलियम, ठीक है ना। जो जितनी गैसेज लगभग ज़्यादातर गैस होती हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। सल्फर, आयोडीन, ठीक है ना, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक है ना। या तो ये सॉलिड होते हैं या फिर वो गैस होते हैं। लिक्विड कोई नहीं होता है, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको, ब्रोमीन को। ब्रोमीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड नेचर में होता है। या तो ये सारे सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं, तो लिक्विड नहीं होते हैं इसमें, सब सॉलिड और गैस होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स के पास भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, मेटल्स की तरह प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि वो फॉलो करते हैं, जो कि मेटल से डिफरेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि सल्फ़र ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं और आयोडीन ले लेते हैं, और इनके ऊपर एक्टिविटी जो भी हमने करी थी 3.1 जो करी थी, एक 3.4 और 3.6 करेंगे। तो 3.1 में हमने क्या किया था, हमने उनको घिस के देखा था। तो क्या आप कार्बन को घिस सकते हो? हाँ, घिस सकते हो। जब आपने कार्बन को घिसा तो वो अंदर से भी वैसा ही ब्लैक कलर का ही निकला। सल्फ़र को घिसोगे तो वो येलो कलर का होता है, अंदर से भी येलो कलर का ही निकलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें कलर। आयोडीन को घिसोगे तो वो भी घिसने के बाद अंदर का कलर जैसा आयोडीन का ब्लैक रहता है तो ब्लैक ही रहेगा। तो हमने क्या देखा
जो उसकी सरफेस थी वो लस्चरस नहीं थी, ठीक है ना, नॉन लस्चरस सरफेस। तो इसकी सरफेस कोई लस्चरस नहीं थी, मतलब उससे कोई भी शाइनिंग नेचर नहीं आ रहा था। तो हमने ये देखा, कि नॉन मेटल जो थे वो लस्ट्रस नहीं थे, ठीक है ना। सेकंड थिंग, अगली जो 3.6 एक्टिविटी थी वो जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी थी, तो कंडक्शन की प्रॉपर्टी भी जब हमने करके देखी तो हमने कार्बन को लगाया और उसमें कंडक्ट करने की कोशिश की, तो कार्बन ने कंडक्ट कर दिया, लेकिन आपका सल्फर और आयोडीन कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन इज एन एक्सेप्शन। कार्बन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल के केस में कि कार्बन कंडक्ट्स। एक्सेप्शन क्या है? कार्बन। वो भी कौन सा फॉर्म बेटा कार्बन का? अगर वो ग्रेफाइट होगा, ठीक है ना, ग्रेफाइट होगा तो ही कंडक्ट करेगा। अगर आप डायमंड लगा दोगे तो डायमंड कंडक्ट नहीं करते, या कुछ और लगा दोगे, जैसे कोल वोल हो गया, कोल भी कंडक्ट नहीं करेगा। आपने कोल ले लिया तो वो भी कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़। तो इसके लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे एक्सेप्शंस को एक बार लाइन से देख लेते हैं। तो एक्सेप्शंस अलग से लिखेंगे सारे। पहले प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे, पहले मेटल्स की प्रॉपर्टी जो मैंने लिखवाई थी वो लिख लेंगे, फिर नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन था हमारा मरकरी। तो लिखोगे आप, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मरकरी के अलावा सारे के होते हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है ना। जबकि हमें पता है कि सारे के सारे जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सेकेंड थिंग क्या है? गैलियम और सीजियम के पास भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। अगर आप इनको अपने पाम में रखोगे, किसके पास? गैलियम और सीजियम के पास। गैलियम और सीजियम भी जो हैं वो आपके कैसे होते हैं बेटा? वो आपके ऐसे होते हैं कि आप इसमें जो है ये इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से आप इसको अगर पाम में रखोगे तो ये मेल्ट हो जाते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है जो कि लस्ट्रस होता है। आयोडीन कैसा होता है? लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है ना, चमकता है आयोडीन, जबकि वो एक क्या है? नॉन मेटल है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है आपका? आयोडीन। सेकंड एग्जांपल इज आयोडीन। थर्ड एक्सेप्शन आप देख सकते हो, कार्बन इज अ नॉन मेटल बट इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, और अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग बिहेवियर शो करती हैं। जैसे डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ अवेलेबल है। जबकि हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। तो आप हथौड़े से अगर डायमंड को मारोगे तो हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड नहीं टूटेगा। सेकंड, कार्बन ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, जो कि कैसा होता है? अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बाकी कंडक्ट नहीं करते हैं, ग्रेफाइट ही करता है, ठीक है ना। और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, जबकि ग्रेफाइट का कम होता है। जबकि इनका मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो है। जितने भी आपके जो भी आपके नॉन मेटल्स हैं उनका लो है, जो भी नॉन मेटल्स हैं उनका लो है। नेक्स्ट इज एल्कली। एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो बहुत छोटे, बहुत कम वैल्यू के होते हैं, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वेरी सॉफ्ट होते हैं, जबकि हमने बोला था कि वो हार्ड होने चाहिए, कि मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, और इनको इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इसको नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है ना। इनके पास लो डेंसिटी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम के पास बहुत ही लो डेंसिटी रहती है, इनकी डेंसिटी एकदम लो रहती है, ठीक है ना। और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मतलब हमने देखा अल्कली अर्थ मेटल, ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, गैलियम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये अल्कली अर्थ मेटल हो गए। और ये क्या कहते हैं? ये कैसे होते हैं? एकदम लो डेंसिटी के साथ होते हैं। अब अल्कली अर्थ मेटल और कृत्रिम मेटल, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो आपका क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किन को हमने अल्कली अर्थ मेटल में लगाया है, किसको हमने अल्कली मेटल में लगाया है, कौन से नॉन मेटल्स हैं, वो सब हम उस क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा क्या है, ठीक है ना। तो दे आर दैट पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू गेन द नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि एलिमेंट्स को हमने ज़्यादा अच्छे से क्लासीफाई कर दिया नॉन मेटल मेटल्स के बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से तो हमने थोड़ा बहुत अलग कर लिया, लेकिन अब जैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी नॉन मेटल जैसी, तो पहले हमने सोचा कि ये नॉन मेटल्स है, लेकिन क्या हुआ,
जो इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज शो करी उसकी वजह से हमने क्या देखा कि ये तो हम लोग मेटल्स में नॉन मेटल्स में रख ही नहीं सकते, इनको हमें मेटल में रखना पड़ेगा। तो कुछ एक्सेप्शंस की वजह से ऐसा नहीं कर सकते कि हम अच्छा ये वाला एक्सेप्शन है तो इसको हम उठा के इसमें डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवरऑल देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों को कंसिडर करते हुए चलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये जो भी हमने एलिमेंट को जिस कैटेगरी में डाला क्या है इस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या एक एक्टिविटी और देखते हैं आपकी 3.8, ठीक है ना। उस एक्टिविटी को एक बार करेंगे और उसके बाद फाइनल इसके जो दिए हुए क्वेश्चन है इन टेक्स्ट वो आप होमवर्क में करोगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इस एक्टिविटी को। हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है। वी विल टेक अ मैग्नीशियम रिबन ऑन सम सल्फर पाउडर। तो एक मैग्नीशियम ले लिया और सल्फर ले लिया। तो मैग्नीशियम कैसा है आपका, देखो मैग्नीशियम कैसा है और सल्फर। मैग्नीशियम इज योर नॉन मेटल और ये क्या आपका नॉन मेटल, ठीक है ना। एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है। तो मैग्नीशियम को देखते हैं पहले, फिर सल्फर को देखेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट विथ मैग्नीशियम। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम के रिबन को लिया, उसमें फ्लेम से बर्नर से आग लगा दी, ठीक है ना। एंड वी स्टार्ट बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन। तो हमने क्या किया, जब हमने देखा कि जब वो मैग्नीशियम बर्न हो रहा था तो वो कैसी वो ग्रीन कलर की फ्लेम दे रहा था। एक तो पहले उसने फ्लेम दी ग्रीन कलर की, दूसरा जब वो बर्न हो गया तो बर्न होने के बाद उसके एशेस कुछ नीचे गिर गए। इन एशेस को हमने क्या किया, अभी जैसे हमने एसिड बेस्ड सॉल्ट में देखा था कि हमने लिटमस को यूज़ किया था, तो इन एशेस को कलेक्ट करके हमने पानी में डाला और उस पानी में हमने देखा कि जब हमने ब्लू लिटमस पेपर उसमें डुबाएंगे तो कैसे कलर का हो जाएगा, दोनों के दोनों ब्लू और रेड लिटमस पेपर दोनों डुबा के देखेंगे। तो जब हमने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डुबा के देखा तो उसका कलर कैसा हो गया, रेड। क्योंकि तो हमने क्या देखा, जो मेटल्स हैं वो जो भी अपनी ऑक्साइड्स बनाते हैं कैसी होती हैं सॉरी, इस कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैसी होती है, बेसिक। ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक। मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है बेटा, बेसिक होती है। तो हमने देखा कि जब ये हमने सॉल्यूशन बनाया मैग्नीशियम की एसिड का, तो मैग्नीशियम की एसिड ठीक है एक्चुअली। मैग्नीशियम को हमने बर्न कराया ना, बर्न किसमें होता है, ऑक्सीजन में। तो इसमें बर्न करने के बाद क्या बनता है, हमको MgO मिलता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना, Mgb2 हो गया, OB2 हो गया, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये रिएक्शन में क्या मेरे को एशेस में क्या मिलेगा, MgO क्या है, एक ऑक्साइड है जो कि मेटल की है। और मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक होती है। तो ये बेसिक होती हैं, ये हमें पता कैसे चला, जब हमने उसमें लिटमस पेपर डाला। जैसे हमने उसमें रेड लिटमस पेपर डाला वो कैसे कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इसका लिटमस पेपर कैसा होगा, ब्लू कलर का, ठीक है ना। क्योंकि ब्लू कलर का लिटमस पेपर हो गया इसका, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो ऑक्साइड थी वो कैसी थी, बेसिक थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम का, ये कैसा था, एसिड बेसिक। हमने इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमने क्या किया, सल्फर को बर्न किया। व्हेन वी स्टार्ट बर्निंग विद सल्फर, हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब में जो भी फ्यूम्स आ रही थी, जो बर्न उसमें से फ्यूम्स निकल रही थी, ठीक है ना। और जो फ्यूम्स निकल रही थी उसको कलेक्ट कर लिया। कैसे करा कलेक्ट, तो देखो कैसे करते हैं बेटा कलेक्ट उस फ्यूम को। जैसे मान लो कि आपने सल्फर होल्डर से पकड़ रखा था, एक होल्डर से सल्फर पकड़ रखा, ठीक है ना, सल्फर, ठीक है ना। इसको जब आपने बर्न करा, बर्न करने के बाद इसमें से कुछ गैसेस टाइप निकल रही थी। जो गैस क्या की हमने ऊपर एक इसके कोनिकल फ्लास्क लगा लिया, ठीक है ना। ऐसे कोनिकल फ्लास्क लगा लिया और उससे ट्यूब के थ्रू उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया। इसकी जो फ्यूम्स है वो जब हमने इकट्ठी कर ली, उसके बाद क्या करना है हमें, उस जिस टेस्ट ट्यूब में फ्यूम्स इकट्ठी करी है वहाँ पर वाटर डाल के उसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे। और जो ये सॉल्यूशन बनेगा फ्यूम्स के साथ जो इसका सॉल्यूशन बना, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम लोग, ये काम करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, अपने लिटमस पेपर को वाटर में डाल देंगे, थोड़ा सा उसको गीला कर देंगे, ठीक है ना। तो वेट हो जाएगा लिटमस पेपर। उसके बाद उसके थ्रू फ्यूम्स को पास कराएंगे तो हमारी फ्यूम्स क्या करेगी, उस लिटमस पेपर का कलर टर्न कर देगी। तो पहले कलर कैसा था आपका, हमारा लिटमस पेपर का पहले कलर कैसा था, ब्लू कलर का था मान लो लिटमस पेपर। तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। जो लिटमस पेपर इस फ्यूम्स में लगेगा कैसा हो जाएगा बेटा, रेड कलर का। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर हो जाए दैट मीन्स ये कैसा है बेटा, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक।
तो क्योंकि इसका नेचर कैसा है बेटा, एसिडिक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्साइड बनी होगी ये क्या होगी बेटा, ये होगी SO2, ठीक है ना, SO2 बनी होगी ये। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पर बन के आई हमारी, ये कैसी थी बेटा, एसिडिक नेचर की थी। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको कैसी मिलेगी, एसिडिक मिलेगी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक बनाते हैं और मेटल्स कैसे बनाते हैं बेटा, बेसिक नेचर की ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं, रिएक्शन बहुत ईजिली लिख सकते हैं। पहली रिएक्शन मैंने लिख के आपको दिखाई, दूसरी रिएक्शन यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, ठीक है ना, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, जैसे C+O2 गिव्स CO2 होता है, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, ठीक है ना। ईजी था एकदम, बहुत आसानी से हमने देखा कि कैसे बना, कैसे रिएक्शन लिखनी थी, तो हमने रिएक्शन लिख के देखी। तो हमने देखा कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं जब उनको वाटर में हम डिजॉल्व करके देखें। और जैसे ही और दूसरी तरफ देखा हमने कि मेटल जब भी हम ऑक्साइड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ इसके बारे में मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है ना। और आपका जो होमवर्क है वो क्या है, आपको जो नंबर 1 नंबर 2 जो क्वेश्चन है आपका इंडेक्स क्वेश्चन वो आपको करना है, ठीक है ना। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, इसके आंसर डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा आपको जो टेबल 3.1 दी हुई है, आपको जो टेबल 3.1 दी हुई है, यू विल ऑल ट्राई टू मेक दिस टेबल इन योर कॉपी, ठीक है ना। और आप क्या करोगे, यहाँ एलिमेंट लिखोगे, उसका सिंबल लिखोगे, उसके कैसी सरफेस थी, हार्डनेस थी, मेलिबिलिटी थी। तो आपने क्या करना है, जो 4 मेटल्स आपके 3.1 में बता रखे थे वो, और जो 4 मेटल आपके जो 3 मेटल आपके 3.7 में, नॉन मेटल्स आपके 3.7 में बताए हैं, उनके बारे में लिखोगे और उनके नाम लिखोगे, उनके सिंबल लिखोगे और उनके बारे में ये सारी बातें आप यहाँ पर पेन डाउन करोगे, ठीक है ना। तो आपकी टेबल 3.1 में आप मेरे पास 7 एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके अलावा हम 1 और 2 को देखेंगे। मैंने एंट्रीज, उन जो भी एंट्रीज हैं उन सब के आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो वो आप लिखोगे और अपना काम कंप्लीट करोगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।